Very good morning, all my dear friends. I, Sandeep Yadav, welcome you all once again in this business law lecture series. Friends, as you know, in our last lecture, we already covered a few important types of a company. Means on the basis of different thing, there are different types of a company, and we already covered. Uh, if I am not wrong, we already covered few types of company. Means on the basis of mode of incorporation. On the basis of mode of incorporation, there are two types of company, that is statutory company and registered company we covered, as well as you can see the screen also. Statutory company and registered company we covered in our last lecture, as well as we covered the another three types of company on the basis of number of members: private company, public company, and one person company. These three types also we covered in our earlier lectures. So what is meant by private company? Everybody knows that private company means a company to whom few restrictions are applicable. Which are those? First restriction is there on transfer of shares. Second, there is a limit on the number of members, and the third one is the prohibition on the public invitation. The company to whom these restrictions, limitations, and prohibitions are applicable, that company is called a private company. Which is called a public company? Public company means a company which is not a private company. What is meant by public company? Public company means a company which is not a private company. Means in very simple language, the company to whom these restrictions of private company is not applicable. Which is the restrictions? The transfer of shares. In private company, the shares can be transferred among their members only. These restrictions cannot be applicable to a public company. Now think next thing is there. This limitation is not applicable to public company, because in private company there is a limitation on the number of its member, and that limitation is 200. This limitation is not applicable in case of a public company, because in public company there is no limit on the number of its member. Now third thing is their prohibition. Private companies are prohibits. Private companies are prohibits to private companies are prohibits to subscribe securities from the general public. This restriction is also not applicable to the public company. Means public company can raise their capital from the public, from the general public. Means this prohibition also not applicable to the public company. Therefore, it is clearly stated that public company is not a private company, because these restrictions, these limitations, as well as prohibitions is not applicable to a public company. Therefore, it is clearly stated that public company is not a private company. As well as everybody knows that nowadays there is no minimum number of paid up share capital is required to any public company. In earlier cases, the minimum paid up share capital is required for public company, but now such minimum paid up share capital is not required in a public company, that we already covered. As well as we covered the one person company. Which company is called a one person company? One person company means a company. One person company means a company where only one person as a member. Only one person is a member. Only one person as a member. That company is called a one person company. And who can become a member of one person company? That we covered. Only a natural person can become a member of a company. Means artificial person cannot become a member. As well as second thing is there, that person must be the Indian citizen. Means a foreigner cannot become a member of a company. Third thing is there, that person must reside in our India from for not less than 180 days, 182 days.
And last thing is there, that person must be a major person. Person must be a major person, means minor person cannot become a member of one person company, as well as he cannot become a nominee of one person company. These points we already covered in our last lectures. So you can see there is a difference between private, public, and one person company. Everybody knows the difference also. In private company, minimum 2 members are required. In public company, minimum 7 members. And in one person company, minimum 1 member is required. प्राइवेट कंपनी में क्या कितने हो सकते हैं मैक्सिमम मेंबर्स? 200 हो सकते हैं. पब्लिक कंपनी में कोई भी लिमिट नहीं है नंबर ऑफ मेंबर्स पे. एंड वन पर्सन कंपनी में मैक्सिमम और मिनिमम एक ही मेंबर होता है. मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी में? दैट इज 2. पब्लिक कंपनी में 3. वन पर्सन कंपनी में 1. एंड एवरीबडी मस्ट नो कि तीनों भी केसेस में वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? दैट इज 15 डायरेक्टर तीनों भी कंपनी में. एज वेल एज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में रिस्ट्रिक्शन है. हमने अभी अभी देखा है कि शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर पे क्या है, रिस्ट्रिक्शंस होता है प्राइवेट कंपनी में. पब्लिक कंपनी में शेयर्स क्या होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं. और वन पर्सन कंपनी में सिंगल पर्सन, इसलिए उसका कोई सवाल ही नहीं. Yes, invitation of public form subscription. Yes, absolutely. प्राइवेट कंपनी क्या नहीं कर सकती है, ऐसे कोई इनविटेशन पब्लिक को नहीं दे सकती कि उनकी जो सिक्योरिटीज यानी शेयर्स वगैरह परचेस करो, ऐसी कोई भी इनविटेशंस नहीं दे सकती प्राइवेट कंपनी. बट पब्लिक कंपनी क्या कर सकती? इनवाइट कर सकती. यू नो, पब्लिक कंपनी शेयर्स आर अवेलेबल ऑन अ स्टॉक मार्केट. एनएससी और बीएससी के साइट पे ये शेयर्स क्या होते हैं? अवेलेबल होते. मीन्स पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब दियर सिक्योरिटीज. बट ओपीसी के केस में भी सेम है, प्राइवेट कंपनी के जैसा, कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब दियर सिक्योरिटीज. These are few differences between private company, public company, and one person company. These are the differences. So in today's lecture, we are going to concentrate another few kinds of a company on the basis of liability of its member. On the basis of liability of its member, there are 3 types of company. One is a company limited by shares, company limited by guarantee, and unlimited company. These are the 3 kinds of a company on the basis of liability of its member. इस मेंबर की जो लाइबिलिटी होती है, कंपनी के जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है, उसके बेसिस पे ये 3 काइंड्स इंट्रोड्यूस किए हैं. तो लेट्स सी फर्स्ट काइंड ऑफ अ कंपनी. फर्स्ट कौन सा है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. Which company is called company limited by shares? A company having the liability of its members limited by the memorandum to the amount, if any, unpaid on the shares. In very simple language, it is defined. Which company is called company limited by shares? The company where the liability of its member is limited up to the unpaid amount of the shares. The liability of its members is limited up to the unpaid amount of these shares. That company is called the company limited by shares. Company limited by shares. Now let's see one example. हमने एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे लेते कि एक कंपनी, ये एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स में लिया था. एक कंपनी है, सपोज ऐसा मान लो XYZ कंपनी. XYZ क्या है? कंपनी. सपोज उस कंपनी के कुछ शेयर्स ए ने परचेस किए. ए पर्सन परचेस शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी. कितने शेयर्स परचेस किए? मान लो उसने 20,000 रुपीज के शेयर्स परचेस किए. ए ने 20,000 रुपीज के शेयर्स परचेस किए. अभी 20,000 में से उसने क्या किए? 15,000
20,000 में से 15,000 जो अमाउंट है शेयर्स की अमाउंट, उसने क्या कर दी, कंपनी को पे कर दी। दिस इज द पेड अमाउंट। बाकी अमाउंट कितना बाकी है, अमाउंट इज 5,000 अमाउंट। दिस 5,000 इज द अनपेड अमाउंट। ये 5,000 क्या है, ये है अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट मीन्स व्हाट, इन दिस केस ये जो ए पर्सन है, ए जो मेंबर है इस XYZ कंपनी का, जो कंपनी को इसी लिमिटेड बाय शेयर्स है, and we already covered where the company is limited by shares, the liability कैसी होती है members की, unpaid amount of the shares। यहाँ पे unpaid amount कितना है इस कंपनी में, एक का unpaid amount कितना है, unpaid amount is 5,000 रुपीज। मीन्स यहाँ पे एक ही लाइबिलिटी कैसी रहेगी, एक ही लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, और लिमिटेड लाइबिलिटी कितना है, 5,000 is the limited liability। Means A is liable only for 5,000 rupees। इस कंपनी पे कितना भी लोन हो जाए, सपोज ऐसा मान लो इस कंपनी पे 1,000 करोड़ रुपीस का लोन है, इस कंपनी पे 1,000 करोड़ रुपीस का लोन है, इसका कुछ एक को कुछ लेना देना है नहीं, उसकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी, सिर्फ एंड सिर्फ 5,000 की लाइबिलिटी रहेगी। बिकॉज क्यों, ये 5,000 रुपीज उसने कंपनी को पे नहीं किया, इसलिए 5,000 की अमाउंट के लिए वो लाइबल रहेगा। सपोज ऐसा मान लो उसने ऑलरेडी 20,000 रुपीज पूरे कंपनी को पे कर दिए, उसकी लाइबिलिटी कुछ भी रहेगी, उसकी लाइबिलिटी कुछ भी नहीं रहेगी। मीन्स ही विल नॉट बी लाइबल फॉर अ सिंगल रुपी, सिंगल रुपी। अंडरस्टैंड, दिस हैपन इन केस ऑफ वेयर अ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। अंडरस्टैंड। नाउ एक दूसरी चीज देखते कि व्हेन दिस लायबिलिटी अराइज, यहाँ पे एक की लायबिलिटी इन दिस एग्जांपल, व्हेन A's liability will arise, in what cases the liability will arise, और कब ये liability arise होती है। There are two things. First, during the lifetime of a company, during the lifetime of a company कभी भी इस मेंबर की लाइबिलिटी क्या हो सकती है, अराइज हो सकती है। मीन्स व्हाट, मीन्स क्या, सपोज ऐसा मान लो यहाँ पे ये जो कंपनी XYZ लिमिटेड कंपनी, इस कंपनी को सपोज ऐसा मान लो इस कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी रिक्वायर्स कैपिटल, कंपनी को पैसे की जरूरत है, तब कंपनी क्या कर सकती, कॉल ऑन शेयर्स कर सकती, यानी कंपनी क्या कर सकती, ये जो शेयर होल्डर, ये जो मेंबर्स है, इनसे क्या कर सकती, अनपेड अमाउंट कॉल कर सकती, कभी भी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, कभी भी जब कंपनी को चाहे तब कंपनी क्या कर सकती है, अमाउंट उस मेंबर्स को मांग सकती। मीन्स फर्स्ट थिंग इज देयर, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी कभी भी एक ही लाइबिलिटी क्या हो सकती है, अराइज हो सकती है। सेकंड थिंग इज दैट, सपोज ऐसा मान लो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कंपनी ने कभी मांगा ही नहीं, शेयर होल्डर मेंबर्स को ये पैसा मांगा ही नहीं, तो एट द एंड ऑफ और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी एक ही लाइबिलिटी अराइज हो सकती है। क्योंकि आपको पता है जब कंपनी वाइंड अप होती है तो कंपनी को जो भी उस कंपनी को जब कंपनी वाइंड अप होती है तब कंपनी को जो भी उनकी लाइबिलिटी होती है वो पे करनी होती है। इसीलिए क्या होता है, वो लाइबिलिटी पे करने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, जो भी अनपेड शेयर होल्डर है, जो अनपेड अमाउंट है शेयर होल्डर के पास, वो कंपनी मांग सकती है। मीन्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एज वेल एज एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, दोनों भी केस में क्या हो सकती है, यहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी अराइज हो सकती है। नाउ यहाँ पे क्लियरली दिखा है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज इंडिया में, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मींस मैक्सिमम कंपनी इंडिया में, मैक्सिमम कंपनी कौन सी है, इसी काइंड की कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अंडरस्टैंड, दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट things about the term company limited, about the term company limited by shares. Now let's move towards the another kind of a company, another kind of a company on the basis of liability of its members, that is company limited by guarantee, company limited by guarantee. In this case, in this kind of a company, the liability of the members is limited up to the extent of up to the extent of guaranteed amount.
द मेंबर इज लाइबल अप टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटेड अमाउंट। जितने अमाउंट की उस कंपनी के मेंबर्स ने गारंटी दी है उतने अमाउंट के लिए क्या रहेगा, मेंबर्स लाइबल रहेगा, मेंबर्स लाइबल रहेगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं या तो हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। यस, जस्ट अ मिनट। अब सॉरी, आप देख सकते हैं ये क्या है, आपके सामने जस्ट मैं आपको थोड़ा सा उसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा अभी। यस, ये क्या है यहाँ पे, ये दिस इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो भी लाइबिलिटीज होती है कंपनी के, जो मेंबर्स की लाइबिलिटीज होती है वो कहाँ पे लिखी होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उस कंपनी का जो एमओए होता है उसका जो लाइबिलिटी क्लॉज होता है वहां पे क्या होती है, लाइबिलिटी लिखी होती है। क्या लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी देखो यहाँ पे जो कंपनी कौन सी लिमिटेड बाय शेयर से, तो देखो फोर्थ क्लॉज है लाइबिलिटी क्लॉज, यहाँ पे लिखा है द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड एंड दिस लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स। जैसे कि हमने लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में देखा था। अभी कौन सी कंपनी है, लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी, हम देख सकते लिमिटेड बाय गारंटी। थोड़ा सा आगे जाके कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें क्या लिखा होता है और कौन सा गारंटी वाला क्लॉज होता है, जस्ट थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। जस्ट मिनट, ये प्रोविजन से कंपनीज एक्ट, एक स्केड्यूल होता है कंपनी एक्ट में, एक स्केड्यूल जो 1 होता है, दिस स्केड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट डील्स विद दिस डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। स्केड्यूल 1 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसमें क्या है कि फॉर्मेट है, किसके फॉर्मेट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के फॉर्मेट है। अलग अलग जो कंपनीज है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, उस कंपनी के क्या है, फॉर्मेट है, उस कंपनी के फॉर्मेट है। अभी देखो यहाँ पे कौन सी कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। यहाँ पे देखो गारंटी क्या होती है, फिफ्थ वाला क्लॉज आप देख लो, इसमें लिखा होता है कि एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट, किसमें कंट्रीब्यूट करेगा, द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाइंड अप व्हाइल ही इज अ मेंबर। और ये जो भी लिखा हुआ है इसमें सिर्फ हमें एक चीज पे फोकस करना है यहाँ पे, लास्ट वाला ना, सच अमाउंट एज मे बी रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग, यानी यहाँ पे जो भी अमाउंट लिखी होती है वो अमाउंट क्या होती है, गारंटेड अमाउंट होती है। और उतने अमाउंट की ये मेंबर क्या देता है, गारंटी दे रहा है। मीन्स अगर इस केस में अगर सपोज ऐसा मान लो कंपनी वाइंड अप भी हो रही है, तो ये पर्सन जो भी इस कंपनी का मेंबर रहेगा, मेंबर विल बी लाइबल फॉर दिस अमाउंट। जहाँ पे ये जो अमाउंट लिखी होती है ना उस कंपनी के एमओए में, तो उतने अमाउंट के लिए ही मेंबर क्या होता है, लाइबल होता है। मीन्स द लाइबिलिटी of a company limited by guarantee, the liability of the members of a company limited by guarantee is limited up to the extent of this guaranteed amount, जो guaranteed amount यहाँ पे लिखी होती है। Understand? Yes, company limited by guarantee के केस में। And another one kind is there, unlimited company. Unlimited company, I already told you, ये जो काइंड है ऐसी रियरली कंपनीज है अपने इंडिया में जिसमें लाइबिलिटीज क्या होती है, मेंबर्स की अनलिमिटेड होती है, लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। क्यों, क्योंकि ये जनरली आपको पता है कि जो कंपनी का फीचर ही क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ कंपनी की कंपनी में लाइबिलिटीज मेंबर्स की कैसी होती है, लिमिटेड होती है। पर इंडिया में ऐसे कुछ कंपनीज भी है वहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, मेंबर्स की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है। तो ऐसी कंपनी फॉर्म ही क्यों होती है, ऐसी कंपनी फॉर्म करने का पर्पज ये होता है, उन्हें लाइबिलिटी से कुछ लेना देना, उन्हें क्या करना होता है कि जो अदर फीचर्स है, अदर एडवांटेजेस है कंपनी के, जैसे कि सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट प्रॉपर्टी है, उसका बेनिफिट लेना होता है। तो उसकी वजह से कुछ लोग क्या करते, ऐसी ही कंपनी इनकॉर्पोरेट करते जिसमें कि मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है, unlimited. Okay, so on the basis of liability of these members, we covered these three kinds of company. First one is the company limited by shares, company limited by guarantee, and
unlimited company. These three kinds we covered. Now let's move towards the another kind of a company on the basis of control. On the basis of control. On that basis, there are again two types of company. One is the subsidiary company and another is a holding company. कंट्रोल, एक कंपनी का दूसरी कंपनी पे क्या होता है, कंट्रोल होता है. देखो आप यहाँ पे इमेज भी दे सकते कि कैसे कंट्रोल, कैसे नचा रहा है अपनी उंगलियों पे. यस, ऑन दैट बेसिस आल्सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी. एक प्रैक्टिकल पहले एग्जांपल लेते और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो सब्सिडियरी कंपनी और जो होल्डिंग कंपनी उसकी हम डेफिनेशन पे फोकस करेंगे. अंडरस्टैंड. प्रैक्टिकली आज हमारे इंडिया में टू एक कंपनी टाटा सन्स, एवरीबडी नोज दिस कंपनी टाटा सन्स, पता है ना आप लोगों को कंपनी. यस, टाटा सन्स ये कंपनी जो जमशेदजी टाटा थे, जो कि प्रमोटर थे टाटा ग्रुप के, या तो टाटा कंपनी के प्रमोटर थे जमशेदजी टाटा. उन्होंने जो फर्स्ट कंपनी इंकॉर्पोरेट की थी वो कंपनी है टाटा सन्स. सॉरी, वन कंपनी कौन सी है, टाटा सन्स. अभी ये टाटा सन्स ना, ये टाटा सन्स ये होल्डिंग कंपनी. टाटा सन्स क्या है, ये होल्डिंग कंपनी. किस कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, टाटा मोटर्स की ये होल्डिंग कंपनी है. सॉरी, टाटा मोटर्स की क्या है, ये होल्डिंग कंपनी. ये होल्डिंग कंपनी मींस हम ये भी कर सकते कि टाटा सन्स टाटा मोटर्स की होल्डिंग कंपनी है और टाटा मोटर्स ना टाटा सन्स की सब्सिडियरी कंपनी. टाटा मोटर्स टाटा सन्स की कौन सी सब्सिडियरी कंपनी. अभी so first of all let's see what is mean by subsidiary companies, what is mean by subsidiary company or what is mean by holding company. इसके हम definition देखते हैं. Now which company is called subsidiary company? In very simple language, subsidiary company means a company in which, subsidiary company means a company in which the holding company, यानी subsidiary company में holding company क्या करती है, कंट्रोल करती है. क्या कंट्रोल करती है, द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसे क्या करती है, कंट्रोल करती है. कंट्रोल करती है यानी क्या, देखो आज प्रैक्टिकली अगर टाटा मोटर्स, ये जो बहुत बड़ा नाम है अपनी इंडिया में, इस कंपनी में अगर किसी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, इस कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, तो वो किसके हाथ में, वो टाटा सन्स के हाथ में. या तो जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स है उन्हें उनकी पोजीशन से निकाल देना है, यानी जो डायरेक्टर है उसे कंपनी से एज अ डायरेक्टर पोस्ट से निकाल देना है. किसके हाथ में, टाटा मोटर्स के हाथ में नहीं, वो किसके हाथ में, टाटा सन्स के हाथ में. मीन्स वेयर जो कंट्रोल होता है, जो कंपोजिशन बोर्ड का अपॉइंटमेंट रिमूवल का जो कंट्रोल होता है, जब दूसरी किसी कंपनी के हाथ में होता है, तो उस कंपनी को जिसका कंट्रोल किसी दूसरे कंपनी के हाथ में, तो उस कंपनी को हम क्या कहेंगे, सब्सिडियरी कंपनी कहेंगे. उस कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी कहेंगे. आप बोल सकते सर ये ऐसा क्यों होता है, ये टाटा मोटर्स खुद अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर सकती है, ये टाटा मोटर्स खुद अपनी अगर कंपनी के अगर कोई डायरेक्टर्स अगर अच्छा काम नहीं करे तो उसे रिमूव नहीं कर सकती है. क्यों ऐसा होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, मैं ऐसा एग्जैक्टली नहीं पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ. सपोज आप ऐसा मान लो कि टाटा मोटर्स इस कंपनी को ग्रोथ करना है, बड़ा सा ग्रोथ करना है, नए नए कुछ व्हीकल लॉन्च करना है. जैसे कि टाटा मोटर्स देखो अभी इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उसमें बहुत बड़ा नाम अभी टाटा मोटर्स का हो रहा है. ऐसे अभी कुछ नए पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना, या तो कुछ नए प्लान्स है टाटा मोटर्स के पास, उसके लिए टाटा मोटर्स को ह्यूज कैपिटल चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए. तो सपोज ऐसा मान लो यहाँ पे टाटा सन्स ये जो कंपनी ने, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ऐसा मान लो कि 10,000 करोड़, ये एग्जाम्पल है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, ये मान लो कि 10,000 करोड़ रुपीज किसे दिए, टाटा सन्स ने टाटा मोटर्स को दे दिए. आपको आपका बिजनेस एक्सपांड करना है तो हम क्या करते, 10,000 करोड़ आपको आपकी कंपनी को दे देते. मीन्स एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को कितना दिया, 10,000 करोड़ रुपीज दे दिया. अभी ये ऐसा 10,000 रुपीज ऐसे ही दे देंगे वो, नहीं. जब टाटा सन्स टाटा मोटर्स को ऐसे 10,000 रुपीज करोड़ दे रही ना, तब क्या कर सकती, एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती. किसमें, एक देयर विल बी ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टाटा मोटर्स एंड टाटा सन्स.
एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी कह सकते हैं कि टाटा सन्स कह सकते देखो हम आपको इतनी बड़ी अमाउंट दे रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो डायरेक्टर्स है जिनके हाथ में ये सब पैसा जाने वाला है, जो इस पैसे का यूटिलाइजेशन करने वाले डायरेक्टर्स, तो उनका जो अपॉइंटमेंट है, उनका जो रिमूवल है, ये जो उनका कंट्रोल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो वो किसके हाथ में होना चाहिए, हमारे हाथ में होना चाहिए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों भी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते, तो देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, अगर साइन किया दोनों भी कंपनी में, तो यहाँ पे जो टाटा मोटर्स का जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट या तो रिमूव करने का जो भी कंट्रोल से किसके हाथ में चला गया, टाटा सन्स के हाथ में चला गया। मीन्स अगर ऐसा किसी कंपनी में होता है, जहां पे कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी के हाथ में, तो उस कंपनी को क्या कहेंगे हम, सब्सिडियरी कंपनी कहेंगे, सब्सिडियरी कंपनी कहेंगे। अंडरस्टैंड, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, और ये वर्ड एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल और टोटल वोटिंग पावर। यहाँ पे मैंने एक वर्ड, यहाँ पे जो ना टोटल शेयर कैपिटल ये ऑलरेडी था, यानी ये वर्ड पहले था, अभी इसको क्या कर दिया, रिमूव करके टोटल वोटिंग पावर ये वर्ड यूज किया। कहाँ, कब से, 2017 में एक अमेंडमेंट हो चुकी है कंपनीज एक्ट 2013 में, 2017 में जो अमेंडमेंट हो चुकी है, उस अमेंडमेंट से क्या कर दिया, ये टोटल शेयर कैपिटल इस वर्ड को निकाल के टोटल वोटिंग पावर ये वर्ड्स क्या किया, इंट्रोड्यूस किया सब्सिडियरी कंपनी के डेफिनेशन में। ओके, तो क्या होता है कि जिस किसी कंपनी के पास 1/2 से ज्यादा टोटल वोटिंग पावर है, यानी जो डिसीजन लेना होता है, जब भी किसी कंपनी को जब वोटिंग होती है, उसका 1/2 से ज्यादा वोटिंग पावर किसके पास है, किसी दूसरी कंपनी के पास है, तो उस केसेस में जिस कंपनी के 1/2 से ज्यादा वोटिंग पावर किसी दूसरी कंपनी के हाथ में, तो उस कंपनी को भी हम क्या कह सकते हैं, सब्सिडियरी कंपनी कह सकते हैं, उस कंपनी को भी सब्सिडियरी कंपनी कह सकते हैं। मीन्स दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग इन द डेफिनेशन ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। व्हाट इज फर्स्ट, controls the composition of board of director by another company, and second, control the more than 1/2 of the total voting powers by the another company is called the subsidiary company। and holding company का definition तो simple है। होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन क्या है, जो कंपनी वो कंट्रोल करती है, कंपोजिशन दूसरे किसी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो भी कंपोजिशन उस पर कंट्रोल करती है, या तो जो टोटल मीन्स 1/2 से ज्यादा वोटिंग पावर्स किसी दूसरी कंपनी का जिस कंपनी के हाथ में, उसे हम क्या कह सकते हैं, होल्डिंग कंपनी कह सकते हैं। अंडरस्टैंड, यस। Means on the basis of control, these are the two types of company, subsidiary company and another is holding company. Good. Now let's move to the another kind of company, that is on the basis of access of capital. There are two types of company, which are those listed and unlisted company. Listed company and unlisted company. This is very simple type of company, very simple. Now let's see which company is called listed company. First of all, listed company means a company which has any of its securities are listed on any recognized stock exchange. Any recognized stock exchange. Which are those recognized stock exchange in our India? Everybody knows that there are two recognized stock exchange in our India, that is NSE and another is BSE. NSE and BSE, National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. These are the two recognized stock exchange in our India. Means जिस किसी कंपनीज की सिक्योरिटीज जो शेयर्स लिस्ट है किस पे, either on NSE or on BSE or on both, जिस किसी कंपनी के
की सिक्योरिटीज इस दोनों भी स्टॉक मार्केट पे या तो दोनों में से किसी एक स्टॉक मार्केट पे लिस्ट है, उसे हम क्या कहते, उसे हम कहते लिस्टेड कंपनी, उसे हम लिस्टेड कंपनी कहते हैं। लेट्स सी, हम एक डायरेक्ट देखते, ओके, कौन सी लिस्टेड कंपनी, देखो यहाँ पे आप देख सकते कौन सी लिस्टेड, यहाँ पे जो लाइव मार्केट भी चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते ये जो भी नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके सामने, जो भी नाम दिखा रहे ये कौन सी कंपनीज है, ये पूरी लिस्टेड कंपनी। ये क्या है, स्टॉक मार्केट, ये सर ये डिमैट अकाउंट है। इस डिमैट अकाउंट पे क्या है, जो एनएससी और बीएससी की जो भी शेयर्स है वो शेयर्स क्या है, लिस्टेड है। कौन सी शेयर्स, कौन सी कंपनीज हो, आईआरसीटीसी, डीमार्ट, रिलायंस। अभी देखो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, जब आप बाय पे जाओगे ना, बाय पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा, दोनों भी दिखाए, बीएससी दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, आप यहाँ से भी बीएससी के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से भी आप परचेस कर सकते हैं, या तो आप एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेस, दोनों की भी इससे आप परचेस कर सकते हैं। यानी जो आईआरसीटीसी जो ये कंपनी है उनकी जो स्टॉक से जो सिक्योरिटीज है ना, बीएससी और एनएससी दोनों की इस पे क्या क्या है, ये लिस्ट है। इसीलिए ये जो कंपनीज है इसे हम क्या कहते हैं, लिस्टेड कंपनी कहते हैं। लिस्टेड जो भी है, देखो आईआरसीटीसी, डीमार्ट, रिलायंस, गोदरेज प्रॉपर्टी, एशियन पेंट, एचडीएफसी लाइफ, अमर राजा बैटरीज, एल&टी, एचडीएफसी, एशियन टाइल्स, ये बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनी। जो भी कंपनी इस स्टॉक मार्केट पे लिस्ट है उसे हम क्या कहेंगे, लिस्टेड कंपनी कहेंगे, लिस्टेड। अभी कोई कंपनी ऐसी है, कुछ पब्लिक कंपनी भी है, कंपनी तो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, कंपनी उसका बिजनेस भी चल रही है, पर स्टॉक मार्केट पे उनकी शेयर्स अवेलेबल नहीं है, ये तो लिस्ट नहीं है, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे अनलिस्टेड कंपनी। उन्हें हम क्या कहेंगे, अनलिस्टेड कंपनी। जनरली आप सबको पता है लिस्ट क्यों होती है, लिस्ट क्यों होती है स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि क्या है कि किसी कंपनी को अपना ग्रोथ करना है, किसी कंपनी को अपना क्या करना है, खुद का ग्रोथ करना है। तो ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले कैपिटल चाहिए। अगर कैपिटल चाहिए तो कंपनी को क्या करना होता है, कंपनी को सबसे पहले जो स्टॉक मार्केट है उस पर अपने शेयर्स लिस्ट करने होते हैं, यानी स्टॉक मार्केट पे उस कंपनी को लिस्ट होना होता है। जब स्टॉक मार्केट पे उस कंपनी के शेयर्स अवेलेबल हो गए तो डेफिनेटली पब्लिक क्या करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बर्गर किंग, एक बर्गर किंग कुछ महीने पहले, यानी आज के कुछ महीने पहले या दो या 3 महीने पहले, बर्गर किंग ना एक कंपनी है, कंपनी के सब जगह पे स्टॉल थे, ये कंपनी पब्लिक कंपनी थी, अच्छी खासी प्रॉफिट में भी चल रही थी। अभी उस बर्गर किंग कंपनी ने क्या कर दिया, उनको उनका बिजनेस एक्सपांड करना था, उनको जो भी उनके ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड करने थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने जो शेयर्स है ना मार्केट में यानी स्टॉक मार्केट पे क्या कर दिए, लिस्ट कर दिए। पहले बर्गर किंग था कंपनी थी अनलिस्टेड कंपनी, अभी वही कंपनी क्या बन चुकी है, लिस्टेड कंपनी बन चुकी है। अंडरस्टैंड? Means on the basis of access of capital there are two types of company, one is listed company and another is unlisted company. So first of all I would like to ask my all dear students, do you understand or not all these kinds of company, listed company, unlisted company? Okay, सब लोगों को काइंड समझ में आ रहे हैं नहीं? यस यस यस, सुजातिया, आदर्श, या यस आदित्य, गुड गुड। हाँ, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। सो आज के लेक्चर में और क्या करते हैं, और जो दो काइंड्स है ऑन द अदर काइंड्स वो भी हम देख लेते हैं, यानी हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी ये जो चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी नॉट ऑन द बेसिस, नाउ अदर काइंड ऑफ कंपनी है, कुछ अदर काइंड्स ऑफ कंपनी कौन सी है, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी, we heard this name number of time, we heard this name, government company, government company, public company, private company. No, government company means yeah, कौन सी कंपनी? So first of all everybody knows that ये वर्ड गवर्नमेंट आता है ना, ये वर्ड ही आता है तब सबको पता है कि दो टाइप की गवर्नमेंट होती है इंडिया में। कौन से होते हैं? एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट पता है आपको, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उन्हें हेल्ड करते, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है।
सेंट्रल गवर्नमेंट। और दूसरा गवर्नमेंट कौन सा है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि अपने अभी महाराष्ट्र में जो उद्धव जी ठाकरे, वो स्टेट गवर्नमेंट और ये चीफ मिनिस्टर है। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट होती है। Now, which company is called government company? In very simple language, it is clearly stated. Government company means any company in which not less than, this word is important, not less than 51%, not less than कितना? 51% paid up share capital is held by, यानी जो 51% या उससे ज्यादा शेयर कैपिटल अगर किसी भी कंपनी में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्ड किया या तो किसी एक स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स ने क्या किया? हेल्ड किया है, या तो पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट and partly by one or more of the state government, that company is called government company. For example, एक एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे देखो एग्जांपल है एमटीएनएल का एग्जांपल, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, एमटीएनएल ये कंपनी। ये एमटीएनएल कंपनी में, इस एमटीएनएल कंपनी में 51% से ज्यादा शेयर्स किसके? पेड अप शेयर कैपिटल किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। मींस किसी भी कंपनी, किसी भी कंपनी जिसमें 51% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, तो उस कंपनी को हम क्या कहेंगे? गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। या तो ऐसी भी कुछ कंपनीज हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ऐसा मान लो XYZ एक कंपनी है, XYZ एक कंपनी, लिमिटेड कंपनी, LTD XYZ लिमिटेड कंपनी। सपोज इस कंपनी में क्या है? इस कंपनी में कुछ शेयर्स किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। सपोज ऐसा मान लो, यहाँ पे हम मानते हैं कि 30% पेड अप शेयर कैपिटल किसके हाथ में? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। XYZ एक कंपनी है, इनके पास 30% जो पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास में? स्टेट गवर्नमेंट के पास में। और 30% जो पेड अप शेयर कैपिटल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, सपोज ऐसा मान लो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के में हाथ में 30%, और 25% जो है ना, 25% शेयर कैपिटल किसके हाथ में? एक गुजरात गवर्नमेंट में। गुजरात का जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, गुजरात का जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके हाथ में कितना है? उनके हाथ में 25% पेड अप शेयर कैपिटल। अभी 30 + 25 कितना हो चुका है? 55। मीन्स यहाँ पे कितना मिनिमम चाहिए? 51% चाहिए। मीन्स अगर ऐसा मान लो किसी भी कंपनी में 51% से ज्यादा शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, तो उसको हम क्या कहेंगे? गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। किसी भी कंपनी में 51% से ज्यादा शेयर कैपिटल किसी एक गवर्नमेंट के हाथ में, या तो एक या और कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, यानी जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया 30% गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और 30% गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के हाथ में। अगर ऐसे किसी एक या दो या और कुछ गवर्नमेंट को मिला के अगर पेड अप शेयर कैपिटल उनके हाथ में, तो उस कंपनी को भी हम क्या कहेंगे? गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। या तो ऐसा भी है पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी पार्टली बाय, सपोज ऐसा मान लो यहाँ पे जो XYZ लिमिटेड कंपनी, इसमें क्या है? ऐसा मान लो 15% किसके हाथ में? 15% सेंट्रल के हाथ में, 15% सेंट्रल के हाथ में। और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना है? 50% सेंट्रल में हाथ में, और जो रिमेनिंग ऐसा मान लो कि सब ऐसा मान लो जो रिमेनिंग 40% है, जो रिमेनिंग 40% या उससे कम भी चाहिए, 40% किसके हाथ में? किसके हाथ में?
एक वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में 40% है, तो भी तो भी उस कंपनीज को हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी ही कहेंगे। उस कंपनीज को हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा, एमटीएनएल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, भेल यानी आपकी वाली भेल नहीं है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये भेल, सेल, ये जो कंपनीज है, ये कंपनीज कौन सी, ये कंपनीज है गवर्नमेंट की कंपनी है। गवर्नमेंट क्यों गवर्नमेंट की कंपनी, क्योंकि इसमें 51% से ज्यादा शेयर्स किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल या पार्टली बाय वन और मोर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के शेयर्स है। इसलिए इस कंपनीज को हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज कीप इन योर माइंड, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। कौन सी है, 51%। लास्ट एक काइंड देखते हैं हम आज के लेक्चर में, दैट इज foreign company. Which company is called foreign company? In very simple language, it is defined that foreign company means a company which is incorporated outside India. कहाँ पे incorporate हो चुकी है ये incorporate हो चुकी है outside India and having a place of business in India. Incorporated outside India and having a place of business in India is called a foreign company. जैसे कि आपको पता है, जब अपने इंडियन से our Indians are much more affected by the product of foreign company. आप अभी भी देखो आपके पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल, जैसे कि आप अभी जो ऑनलाइन लेक्चर्स आप अटेंड कर रहे हो, जो आपके पास मोबाइल से, आपके पास जो लैपटॉप है, वो भी देखो कि प्रोडक्ट किस कंपनी का है, अपनी इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी का है। हाँ, यानी हम भी क्या होते हैं, जो भी मोबाइल से, सैमसंग मोबाइल है, जो अभी आपका एप्पल मोबाइल है, या तो लिनोवा का लैपटॉप है या डेल का लैपटॉप है, these all products are a product of फॉरेन कंपनी। आप बहुत सारे, आप सुबह से रात तक देख लो, हम कितने सारे जो भी प्रोडक्ट्स है फॉरेन कंपनी के प्रोडक्ट्स हम क्या करते, यूज करते। विच कंपनी इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी, जो कंपनी क्या होती है, आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट होती है, आउटसाइड इंडिया। सपोज ऐसा मान लो कि एक जो भी एक कंपनी, कोई भी कंपनी है, ऐसा मान लो गूगल देखो या तो फेसबुक देखो, ये कंपनीज क्या है, ये फॉरेन की कंपनी, फॉरेन कंपनीज है। यानी फॉरेन में जो उनका, जैसे कि अपने यहाँ पे कैसे कंपनीज एक्ट है, वैसे उनके यहाँ पे भी कुछ जो भी कंपनीज एक्ट रहेगा, उस कंपनी एक्ट में जो प्रोसीजर बताई गई है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, पर बिजनेस कहाँ पे कर रही है, बिजनेस कर रही है इंडिया में, बिजनेस कर रही है, तो सारी कंपनीज को हम क्या कहेंगे, फॉरेन कंपनीज कहेंगे, जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट होती है और बिजनेस इंडिया में करती है, उस कंपनीज को हम क्या कहेंगे, फॉरेन कंपनीज कहेंगे। Okay, so my dear friend, these are few important types of a company. These are few important types of company, means on the basis of different things there are different types of a company.